Sandhya Satodia, and welcome to Turia Talks. Hello and welcome to the ninth live episode of season 1 of Turia Talks. Today we have with us the founder of Nemichand Mamalwa and past chairman of GJF, Mr. Bachraj Mamalwa. Welcome to Turia Talks, sir. Thank you, Sundar. Gems and jewelry creates third largest job in the country after real estate and textile, with 7% of total exports taking place from this sector. And the World Gold Council, as we all say, WCG, has also reported dip of 39% in sales of jewelry in the first quarter for India. And last but the least, but purchases are estimated to plummet around 30% in 2020, that is the current calendar year, from 690 tons last year. So I think I would like to share something that would make it the smallest annual purchase since 477 tons, which was bought in the year 1995 way back. Now we know that the desire to adorn goes back to a very, very long time. It predates written history itself. Jewelry stands in the heart of adornment. So, sir, I mean to ask, where does the gem and jewelry sector stand today as we talk? Good evening, everybody. The jewelry industry, you are asking me where does it stand? It stands very strongly on a very good footing. As you have told, that in numbers, if I tell you this industry is 6 lakh crore, and if we do a simple mathematics, we have lost a business opportunity of around rupees 1 lakh crore. And it is very difficult to analyze the loss due to COVID-19. Uh, Right, sir. in simple words, it is 1 lakh crore in terms of revenue that we have lost this opportunity, but I don't think that we will be losing this opportunity completely. And we hope to regain these lost opportunity in the coming years. In my opinion, the biggest loss will be the loss of skilled workers who are leaving their workplace and they are going to their hometowns. And today I don't think that after COVID-19, when we open, these workers will report to work very immediately. Like we have seen comments, not from our industry, but from different industries also. The Pravasi Mazdoor saying that noon roti खाएंगे लेकिन वापस काम पर नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे ये बिल्कुल इस सही तरह है की जो बातें आ रही है, these are very very discouraging, and we don't see the workforce coming back to normal work very easily. So we can assess the loss or where we are standing after the sector is open and we are fully operational. Then we will be able to analyze the loss of work or loss of revenue and all the things. I think I got this question from one of the jewelers who wanted to understand, a very small jeweler in one of the districts in Bengal. So I think his question was, what operational measures have been taken by the jewelry sector in order to retain the jobs in the different stores and factories? What they should do? Sandhya, I can tell you at this point of time that the jewelry sector has emerged very, very stronger in comparison to other industries. We have not laid off any employees, and the employees have got salary till today. Right, sir. So this has emerged stronger in terms of responsible sector, and despite government clearances, most of the sector has not opened, respecting the safety of their employees, their artisans, and their consumers at large. So Right, sir. we are still waiting for the things to clear out, and we will open when the things are absolute clear, and we are sure
that our employees and our customers and our artisans, they are all safe and they do not attract corona due to opening the jewelry stores. So in that case, that front, we are very, very organized, and we are taking all measures. If any question, if I believe I have answered your question. If there is any particular question that what we are doing, we are organizing a lot of webinars. I believe there is some product called Mind Speak. We have started webinars age earlier as 31st March, and we are doing webinars with jewelers, what to do and what not to do on different subjects, and how we are going to cope up with the lost opportunities. And these are available on the all the episodes. I think they are now 50 plus webinars, and they are all available on YouTube. Just type Mind Speak, and you will be able to find out all the episodes in all the topics, and you will be able to view those webinars. And I believe it is a sea of knowledge, and बिल्कुल everyone सही। who is going through this, they will be very, very clear in their minds that what we are going to do post COVID and what precautions we should keep in our mind and at our stores and at our factories to restart the business. Prices for gold has seen an all-time high of 45,000. I remember 45,724 per 10 grams in April 2020. So हम लोग क्या आगे जाके कुछ कर्व में फ्लैटनिंग देख रहे हैं क्या केस में आगे? संध्या जी, अपने आप को अपडेट कीजिए। जी। गोल्ड प्राइस का हाई जो प्राइस है वो 49,700 के आसपास भी पहुंच गया है मई महीने में। मेरे ख्याल से आपने जो प्राइस कोट किया है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्राइस कोट किया है, लेकिन फिजिकल गोल्ड जो है वो मई महीने में 49,000 तक पहुंच गया था, और अभी भी ये 48,000 के ऊपर है। मैं यदि आपने ये बोला है कि ये कर्व फ्लैटन होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस वापस नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। यदि मैं इसमें कुछ भी कमेंट करता हूं तो ये मेरी तरफ से मूर्खता होगी। Right. We have a question from Shruti Garg. Due to coronavirus, there has been a situation in Thailand where hundreds of people have sold off their gold exchange of cash. A number of jewelry owners are worried about similar situation in India. Sir, how do you feel about this, sir? देखिए, थाईलैंड में हमने देखा है, हमारे पास में फोटोग्राफ में, मैं हिंदी में बोलूं तो ठीक है या इंग्लिश में? बिल्कुल सर, क्योंकि हिंदी ही चलता है, भारत में लोग हिंदी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और हमारा मुद्दा है कि ज्वेलर्स भी समझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो भी बात है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कोई भी हो, समझ में आनी चाहिए। सीरियसली देखिए, थाईलैंड में हमने देखा है कि जैसे ही ज्वेलरी स्टोर खुले हैं, वहां पर लोगों की लाइन लग गई है सोना बेचने के लिए, अपनी जरूरत की डे टू डे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और वहां पर सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को अपील करनी पड़ी थी लोगों को कि आप प्लीज सोना मत बेचिए, या सोना बेचते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेचिए, ताकि ज्वेलर को किसी को परेशानी नहीं हो। वो उनके पास में भी फंड की लिमिटेशन होती है, तो उनका फंड खत्म ना हो जाए, इसका आप ध्यान रखें और आप थोड़ा थोड़ा सोना बेचिए। ये थी थाईलैंड की बात। मैं इंडिया की बात जहां तक करता हूं, मैं इंडियन कंज्यूमर की मेंटेलिटी को मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने उनकी मेंटेलिटी को मैंने पढ़ा है, उनके नेचर को और उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश की है। उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में जब स्टोर खुलेंगे तो इस तरह की नौबत आएगी। हिंदुस्तान में जो लोग सोना खरीदते हैं, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं।
मैं अगेन अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि यदि आपको सोना में इन्वेस्ट करना है तो आप स्पेकुलेशन के लिए मत कीजिए। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सोना, जो जरूरत के लिए होता है वो जरूरत के लिए सोना खरीदिए। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो लॉन्ग टर्म का व्यू रख करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। आज तक का इतिहास ये बताता है कि इसमें आपको नुकसान कभी भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, राइट मैं सर। पॉजिटिव होकर के ये बोलना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की सिचुएशन आती है कि लोग सोना बेचने के लिए आएंगे और यदि ज्वेलर्स यदि इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि यदि हाउस होल्ड का सोना बाहर आएगा तो ज्वेलर को मार्केट से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राइट ज्वेलर सर। को मार्केट से सोना नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया गवर्नमेंट को सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट यदि नहीं करते हैं, सोना इंपोर्ट नहीं करते हैं या कम करते हैं, तो इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो बढ़ेगा। वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। राइट सर। मैं ज्वेलर का जो फियर है, मैं एब्सोल्युटली क्लियर कर देना चाहता हूं कि उनको फियर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अपना कंजम्पशन का जितना सोना है आप मार्केट से मत खरीजिए। आप जो कंज्यूमर से जो सोना आता है, आप वो सोना बहुत इजीली रिफाइन हो सकता है और छोटे से छोटे टाउन के अंदर में रिफाइनिंग फैसिलिटी है। आप उसी सोने को रिफाइन कीजिए, रिफाइन करके अपनी जो ज्वेलरी बनाने की आपकी जरूरत है उस जरूरत को उस सोने से पूरा कीजिए। यदि आपके पास में आपकी जरूरत से ज्यादा सोना आता है तो आप उस सोने को मेल्ट करके, उसको रिफाइन करके उसको मार्केट में बेच दीजिए। आप ये राइट। ऐसा करके भारत सरकार को मुश्किलों से बचाएंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। राइट सर, द एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, ऑनलाइन परचेज। तो हम लोग क्या आगे जाके देख सकते हैं कि हाउ विल इट बेनिफिट ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड व्हाट रोल इट विल हैव इन फ्यूचर, ई कॉमर्स परचेज? देखिए ई कॉमर्स का परचेज जो है, जहां तक मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करता हूं, वो ई कॉमर्स जो है वो सेक्टर इंडिया में अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि टच एंड फील जो होता है, टच और फील का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं है या सक्सेसफुल आगे नहीं होगा। ये आज भी कुछ कंपनियां हैं जो आज भी बहुत सक्सेसफुल है और सिर्फ ये ई कॉमर्स का ही काम करते हैं। बिल्कुल। आज आज की तारीख में ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास में टाइम नहीं मिलता है ज्वेलरी स्टोर पर जाने का। और मान लीजिए स्मॉल टिकट साइज की जो ज्वेलरी होती है वो आज भी लोग भारत इंडिया में कुछ कुछ पिछले 5-10 वर्षों में कुछ कुछ लोग खरीदने लगे हैं। लेकिन जहां तक वेडिंग का सवाल आता है, वेडिंग के लिए जो ज्वेलरी परचेज की जाती है, जिसका मान लीजिए हमारे इंडिया में करीब 65% जो ज्वेलरी की बाइंग होती है वो वेडिंग पर्पज के लिए होती है। तो उसमें जो वैल्यू जो होती है, आज आज के जिस तरह के सोने के प्राइस हो गए हैं, हमारे यहाँ पर मान लीजिए 10 तोला मिनिमम माना जाता था कि 10 तोले की ज्वेलरी बहुत मिनिमम सी होती है, उसका भी आज 5-6-7 लाख रुपया प्राइस हो जाता है। उतने ज्वेलरी खरीदने के लिए आज भी लोग हिचकिचा रहे हैं ई कॉमर्स पर खरीदने के लिए। जैसा आपने बोला कि ज्वेलर को जानिए, ज्वेलरी को मत देखिए। अब ज्वेलर को यदि मैं बात करता हूँ, आप कलकत्ता में हो और आप मेरे स्टोर पर आना अफोर्ड कर सकते हो, यदि आपको 5-7 लाख रुपए की या 1 लाख 2 लाख रुपए की ज्वेलरी आपको खरीदनी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भाई आप मेरे स्टोर पर आकर के आप खरीदें। उसको आप ऑनलाइन खरीदना पसंद नहीं करेंगे। जबकि ये होता है कि आपने यदि किसी बाहर के किसी ज्वेलर की ज्वेलरी आपको डिजाइन पसंद आ गई और ये 10-20 हजार रुपए की ज्वेलरी है, आपको लगता है कि भाई ठीक है 10-20 हजार का हम गजट भी खरीद लेते हैं कभी, और खराब भी निकल जाता है तो कोई बात नहीं है, कभी चलो खत्म हो गया तो खरीद राइट लो। सर। तो उस तरह की ज्वेलरी खरीदी जा रही है।
आज देखिए, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। हम अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के चश्मे से देख सकते हैं। आज यूरोप राइट। में और अमेरिका में जो आज होने वाला है वो 5 बरस बाद में हमारे यहाँ पर भी होगा। 10 बरस लग सकता है उसको, 5 बरस लग सकता है। यूरोप और अमेरिका में भी आज जो वैल्यूएबल ज्वेलरी है वो ऑनलाइन नहीं खरीदी जाती है। वो आज वहां पर अगेन वो $100 की जो या $1000 की जो ज्वेलरी है, वहां तक की ज्वेलरी ऑनलाइन लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वैल्यूएबल ज्वेलरी आज भी नहीं खरीदते हैं। उसमें मान लीजिए जनरली आपको सब कुछ देखा जाता है, वियरेबिलिटी कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, टच एंड फील अपने ऊपर में लगा करके आईने में देखने में जो सुख मिलता है, वो आप ऑनलाइन में नहीं कर में सकते नहीं हैं। मिलते। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि ई कॉमर्स जो है वो इंडिया में चलेगा नहीं, ये चलेगा। और कोरोना आने के बाद में ये मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा। और कोरोना के रहते ये डिजिटल जो सेल्स वगैरह है उसका प्रमोशन होगा, और उसमें काफी नए डेवलपमेंट होंगे। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इसके अंदर में जो डिजिटल या ई कॉमर्स के जो सॉल्यूशन आएंगे, वो सॉल्यूशन दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होगा। इसमें समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन ये समय अब आ गया है। आने वाले समय में ये डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली होगा। We have a question from Shivam Guha. Will designated export units of diamond during the late pandemic stage be once again be able to sustain its market or not? देखिए, ये एक्सपोर्ट का मार्केट भी सारी कुछ नॉर्मल होगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। जिस तरह से हम मान लीजिए ठीक है बाकी काम करते थे, अब ये समय इसमें लग सकता है। जैसे मैंने बताया कि जितने देखिए सब जो काम करने वाले किसी भी फैक्ट्री में हो, चाहे वो डायमंड की फैक्ट्री हो या एक छोटे से छोटे कोई खिलौना बनाने की फैक्ट्री हो, उसमें जो लेबर जो काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वो अपना हमारे रूरल इंडिया से आते हैं, विलेजेस से आते हैं। और जिस तरह की कंडीशन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, जिस तकलीफ से वो घर वापस जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी से वो फैक्ट्री में वापस आएंगे। ये चैलेंज है हमारे। मान लीजिए हमारा जो इन प्रोसेस जो सामान था फैक्ट्रीज में एक्सपोर्ट के लिए, हमारा एक्सपोर्ट कुछ कुछ चालू हो गया है। जैसे डायमंड का एक्सपोर्ट, जो लूज डायमंड का एक्सपोर्ट होता है, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है हमारा। भारत डायमंड बोर्स भी 3 दिन के लिए खुल रहा है और लिमिटेड पीरियड के लिए खुल रहा है, और एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ खुल रहा है, और वहां से एक्सपोर्ट की शिपमेंट वगैरह लग रही है। लेकिन जो नया प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो नया प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा, और एट द सेम टाइम ये है कि उसकी डिमांड आने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि सिर्फ इंडिया बंद नहीं है, हमारे इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, दुनिया के हर एक कंट्री में आज लॉकडाउन है, तो वहां से डिमांड भी अब नहीं आ रही है। हमारा चैलेंज ये है कि हम मान लीजिए दुनिया में, मान लीजिए क्रिसमस के पहले हम ज्वेलरी किस तरह से सप्लाई कर पाते हैं, और डोमेस्टिक में हमारे इंडिया के अंदर में हम दिवाली के पहले हम ज्वेलरी किस तरह से हम सप्लाई कर पाते हैं। ये हमारा चैलेंज है। हमको अपने वर्कर्स को वापस बुलाना पड़ेगा, और हमारा जो काम है उसको हमको सुचारू रूप से हमको वापस चालू करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डोंट फियर इट। सर, आप ईटीएफ के बारे में बोल रहे थे, अभी ईटीएफ के लिए कोई क्वेश्चन है? इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड बाइंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अनदर वे वन कैन गेट एक्सपोजर टू गोल्ड। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सर बिल्कुल, देखिए अब बता मैं दीजिए कि बताता मैं कैसे करना है। देखिए मैं बता देता हूँ कि ईटीएफ जो आ रहा है, ये ईटीएफ फिजिकल गोल्ड के का एक सब्स्टिट्यूट है। हमारे इंडिया में, भारत में जो है, ये गोल्ड का पोजीशन एक रहा है, ये बिल्कुल ही पर्सनलाइज रहा है। और गोल्ड का पोजीशन यहाँ पर हम उसको, जो येलो मेटल का जो फील है ना, वो हाथ में लेकर के हम जरूर देखते हैं, भले घर में ले जा करके उसको लॉकर में रख दें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ईटीएफ नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, ईटीएफ हमारे पास में यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है। यूरोप और अमेरिका में आज हर घर में ये पोजीशन है कि प्लास्टिक मनी चलती है।
मैंने यूरोप में और अमेरिका में मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिनके घर में ताले नहीं होते, जिनके घर में तिजोरी नहीं होती, जिनके घर के एक भी ड्रावर में चाबी नहीं होती, और वहां के लोग अपना पासपोर्ट जो होता है वो सबसे कीमती पोजीशन उसको समझते हैं और पासपोर्ट को गाड़ी के डैशबोर्ड में रखते हैं। उस देश में और उस कल्चर में ईटीएफ है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे देश में ये अभी तक इसको अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आप ईटीएफ मत खरीदिए, ईटीएफ आप खरीदिए, गोल्ड ईटीएफ जरूर लीजिए। आपके पास में एक सुकून होगा कि आपके पास डीमेट में एक सर्टिफिकेट पड़ी है और उस सर्टिफिकेट से आपको एक गोल्ड का पोजीशन होता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड का पोजीशन, उसको देखने का जो सुख मिलता है वो सुख आपको नहीं मिलेगा। और ईटीएफ में भी आप खरीदते समय आप अच्छी तरह से आप देख लीजिए, आप शेयर जिस तरह से खरीदते हैं कि आपने रिलायंस का या XYZ कंपनी का शेयर खरीद करके डीमेट में आपने रख दिया और रखने के बाद में आप निश्चिंत हो गए, उस तरह से और उस शेयर में भी अभी आपने जो कार्वी कमोडिटीज में जो एक इरेगुलरिटीज देखी थी, तो उस तरह से एक हमारे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में भी कमोडिटीज के अंदर में एक इरेगुलरिटी देखी गई थी, जहां पर लोगों ने खरीद लिया हुआ था और उनके वेयर हाउस में वो सामान नहीं था। ईटीएफ में आपको ये जानना जरूरी है कि आपके बिहाफ में कोई आदमी सोना परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको जरूरत पड़ने पर वो सोने की डिलीवरी दे देगा या नहीं दे देगा, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसके अलावा मैं इसमें कोई खराबी नहीं देखता हूँ। सर गोल्ड इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आई थिंक अगर हम लोग रहेंगे 2 घंटा भी हम लोग को क्वेश्चंस मिलता ही रहेगा, बट आई हाँ थिंक वी हाँ कैन हाँ। रैप इट अप। यू आर टू बिजी, राइट? सर थैंक यू फॉर योर टाइम, and I think we are at the end of yet another wonderful episode of Turiya Talks. In our first session, we have grown in leaps and bounds. Our viewing rate has gone up by 500% from episode 1, and it wouldn't have been following without our audience. So thank you so much for supporting us. Keep writing us about guests. सर हम लोग को काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आपको बुलाने के लिए, अच्छा, इसीलिए आपको बुलाएं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बिकॉज वेरी मच। यू इट्स माय प्रिविलेज कि भाई मैं यदि कुछ भी थोड़ा सा भी एक्सप्लेन यदि कर सका और हाँ, इससे किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आई विल बी राइट द हैप्पीएस्ट पर्सन। राइट। कैलकाटा में हम लोग आपको सिर्फ ज्वेलर नहीं बोलते हैं, आई थिंक कपल ऑफ पीपल से दैट यू आर एन इकोनॉमिस्ट, सो थैंक यू। So I can only say thank you once again, and see you next Tuesday on 2nd June on another episode of Turiya Talks. Stay tuned. So I think Sandhya Sutodia signing off. हाँ, Take care and अभी have अभी a यहाँ great पर weekend. आपके इसमें था कि किसी ने थैंक्स मुझे बोला है कि ये सोशल सिक्योरिटी है, ये बताने के लिए थैंक्स बोला है। Hmm. मैं उसको Hmm. और इलाबोरेट करता हूँ कि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये Right, sir. सोशल सिक्योरिटी का, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का एकमात्र टूल है ये ज्वेलरी जो है। बिल्कुल। बाकी कंट्रीज के अंदर में लोग उनको सोशल सिक्योरिटी देते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, जॉबलेस क्लेम देते हैं। हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं है, तो एकमात्र जो सोशल सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट इंडिया में है वो ज्वेलरी ही है। एंड थैंक Right, यू sir. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच Okay, आपको sir. बुलाने के Thank you, लिए। sir.